بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ جب کسی سے پوچھا جائے کہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا کیسا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ڈگری کی ویلیو کم ہے، فیکلٹی کے ایشوز ہیں، ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے، اس میں مسائل ہیں، اس یونیورسٹی کا سکوپ کم ہے، اور کچھ لوگ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ کیا وہ ورچوئل یونیورسٹی میں داخلہ لے یا نہ لے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے کہ کن کن لوگوں کو داخلہ لینا چاہیے اور کن کن لوگوں کو داخلہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر داخلہ نہیں لینا چاہیے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور داخلہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس یونیورسٹی کے ڈگری کے سکوپ، اس میں پڑھائی کے طریقہ کار کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس یونیورسٹی میں کون سی فیکلٹی اچھی ہے اور کون سے پروگرام بہت اچھے ہیں۔ ملک بھر کی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کے حوالے سے اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اس چینل کے اوپر ہم مسلسل ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ورچوئل یونیورسٹی فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی سال میں 2 دفعہ ایڈمیشن، جس میں سپرنگ اور فال ایڈمیشن ہوتے ہیں، وہ کنڈکٹ کرتی ہے۔ سپرنگ ایڈمیشن فیبروری مارچ کے مہینے میں اور فال ایڈمیشن اگست سپٹمبر کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی کی ڈگری کے بارے میں ہم پریکٹیکلی بات کریں گے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں HEC کی ویب سائٹ پہ اور وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کی ریکگنیشن کہاں پہ ہے، اور HEC نے جو فیک یونیورسٹیز کی لسٹ جاری کی ہے اس میں کہیں ورچوئل یونیورسٹی کا نام تو نہیں ہے، تو ہم آپ کو مکمل پروف کے ساتھ یہاں پہ دکھائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ HEC کی ویب سائٹ ہے، اور یہاں پہ یونیورسٹی انفارمیشن ہے، اور یہاں پہ ریکگنائز یونیورسٹی، پاکستان کی جتنی ریکگنائز یونیورسٹیز ہیں HEC نے ریکگنائز کی ہیں وہ تمام کی یہاں پہ لسٹ موجود ہے۔ اور یہاں پہ انلیگل انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں، جتنی یونیورسٹیاں فیک ہیں، جنہوں نے HEC کی پالیسی کو فالو نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنی لسٹ یہاں پہ مینٹین کی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم ریکگنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ریکگنیشن لسٹ کے اندر یہ یونیورسٹی موجود ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر کے اندر پاکستان کی تمام یونیورسٹیز جو کہ HEC سے ریکگنائز ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ موجود ہے۔ میں یہاں سے فلٹر لگا کے اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈیسینڈنگ آرڈر میں کیا ہے، تو یہاں پہ یہ تیسرے نمبر پہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان یہ HEC کی ریکگنیشن لسٹ کے اندر موجود ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انلیگل یونیورسٹیز کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ یونیورسٹی فیک یونیورسٹیز کی لسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہاں پہ HEC نے انلیگل اور فیک یونیورسٹیز کی لسٹ جاری کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ یہاں میں کسی یونیورسٹی کا نام لیے بغیر اس کو دیکھتا چلا جا رہا ہوں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لسٹ کے اندر ورچوئل یونیورسٹی کا نام نہیں ہے۔ سندھ کی یونیورسٹیز آ گئی ہیں، اور اس کے بعد لسٹ آف فیک انلیگل انسٹیٹیوشن آف آزاد جموں کشمیر، اور پھر خیبر پختونخوا کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسٹ آف فیک انلیگل ان لافل اینڈ ان ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن آف فیڈرل کیپٹل۔ تو یہاں پہ اس یونیورسٹی کا نام اس میں نہیں ہے۔ سو HEC نے اس یونیورسٹی کو اپنی ریکگنیشن دی ہوئی ہے اور اس کی ڈگری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے یہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ اور حقائق بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس یونیورسٹی کا سب سے اچھا فیلڈ کون سا ہے۔ اگر آپ IT کی فیلڈ میں ڈگری لینا چاہتے ہیں، جیسے BS انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، BS کمپیوٹر سائنس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام ہے، یا پھر سائبر سیکورٹی کے پروگرام ہیں، تو یہ یونیورسٹی زبردست قسم کی یونیورسٹی ہے۔ یہاں پہ جو کمپیوٹر سائنس کی فیکلٹی ہے وہ اسپیشلائز فیکلٹی ہے یہاں پہ، اور یہ یونیورسٹی فیڈرل گورنمنٹ کو IT کی شعبے میں ریسرچ بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے تو یہ اس کا IT کی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ رول ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ کون کون سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں، ان کے لیے یہ فیزیبل ہے۔ وہ سٹوڈنٹ جن کے مارکس 45% سے کم ہیں ان کو بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے۔ نمبر کم ہونے کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں یا پبلک یونیورسٹیز ہیں کمزور سٹوڈنٹس کو داخلہ نہیں دیتی ہیں، وہاں پہ میرٹ کا ایشو ہوتا ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی 45% سے کم نمبر والے سٹوڈنٹ کو بھی داخلہ دے دیتی ہیں۔ صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک 0 سیمسٹر لگانا پڑتا ہے اور وہ اپنی ڈیفیشنسی کو میٹ کر لیتے ہیں۔ جن سٹوڈنٹ کے کم نمبر ہیں تو وہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس یونیورسٹی کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ انتہائی مناسب ہے، کم فیسیں وصول کی جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز۔ تو جن لوگوں کے مالی حالات خراب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں زیادہ فیسیں، وہ یہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو گھر سے دور جا کے یونیورسٹیز کے کیمپسز کو جوائن نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ
दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पार्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं, यानी वो मॉर्निंग में अपनी कुछ सर्विस करते हैं, कोई जॉब करते हैं और वो पिछले टाइम या रात के वक्त पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं, उनके लिए ये फिजिबल है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर सेशन में किसी एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुके हैं और वो साथ पार्ट टाइम में कोई और डिग्री करना चाहते हैं, जिस तरह बीएड है, प्राइमरी डिग्री वो किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और सेकेंडरी डिग्री वो लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फिजिबल सिचुएशन है कि वो भी दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिलता है और अब उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, और चूँकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में फ़ीसें बहुत ज़्यादा फ़ीसें देने की बजाय आप ये जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि कम नंबर्स के साथ भी आपको डिग्री प्रोवाइड कर देती है, दाखिला इसमें ले सकते हैं। तो ये 6-7 सिचुएशन थी कि ये वाले लोग जिनके साथ ये मसाइल हैं वो इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें और यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। अब हम जिक्र कर लेते हैं कि किन लोगों को इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनको पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल सकता है, तो उनको इस यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन नहीं होती है, यानी आपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर नहीं पढ़ना होता है, बल्कि आपने डिस्टेंस लर्निंग करनी होती है, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होती है। इसके बारे में वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का तरीकाकार क्या है। तो वो लोग जिनको पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल सकता है वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला मत लें, और वो अफराद जो अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा फीस अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनको पब्लिक सेक्टर में दाखिला नहीं मिलता तो वो प्राइवेट सेक्टर को तरजीह दें, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो बात यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि कंप्यूटर्स के प्रोग्राम के अलावा अगर आप किसी और प्रोग्राम में दाखिला लेने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें। कंप्यूटर की फील्ड में जिन प्रोग्राम्स का मैंने ऊपर जिक्र किया है, जिसमें BScs है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन प्रोग्राम्स के लिए आप इस यूनिवर्सिटी को तरजीह दें, बजाय इसके कि आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत फिजिबल है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फैकल्टी ऑफ आर्ट में डिफरेंट प्रोग्राम है, जिसमें BS प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की BS एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम है, जिसमें BEd ऑनर, BEd एलिमेंट्री 2.5 ईयर और BEd सेकेंडरी 1.5 ईयर, एसोसिएट डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन के प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के BS के प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है और डिप्लोमा प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें BS के प्रोग्राम है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स के प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री इन साइंस इक्विवेलेंट टू ओल्ड BSc और डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। स्टूडेंट ये याद रहे कि फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इनकी स्पेशल लैब्स हैं, उन लैब्स में जाकर आपको प्रैक्टिकल काम भी करना पड़ता है। यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ कि लैब्स कहाँ कहाँ हैं और इसके कैंपसेस की भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये लैब सिटीज़ दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर, कराची, गुजरांवाला, एबटाबाद, साहिवाल, बहावल नगर, बहावलपुर, जेलम, मुजफ्फरगढ़, कोयटा, हैदराबाद और गुजर खान यहाँ पे लैब सिटी हैं। और यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट यहाँ पे जाके अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तरीकाकार है इस यूनिवर्सिटी में वो डिस्टेंस लर्निंग का है। ऑनलाइन आपको दाखिला भी ऑनलाइन करवाना पड़ता है और आपके क्विज़ेज और क्लासेस, सेमिनार वगैरह सारे के सारे आपके ऑनलाइन होते हैं, माँ सिवाय फिजिकली लैब्स में जाना पड़ता है। जिन लोगों ने बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम में दाखिला लिया होता है उनको इन लैब्स में जाना होता है। अदरवाइज़ इस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में 3 हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं, कैपिटल सिटी में 3 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 2 हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 17 हैं, पंजाब में 148 और सिंध में 25 जगह यहाँ पे कैंपस बने हुए हैं। और इनमें से कुछ कैंपसेस जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अपने हैं, यानी सरकारी हैं, और कुछ प्राइवेट हैं जिनकी एफिलिएशन है। और
उन कैंपसेज में वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं जहाँ पे जाकर इम्तिहान देना होता है। पढ़ाई का तरीकाकार ये होता है कि आपको ऑनलाइन क्विज़ भेजे जाते हैं, असाइनमेंट भेजी जाती हैं और सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो आपने अटेंड करने होते हैं। और वो अटेंड करने के बाद जब इम्तिहान का टाइम आता है तो आपके नज़दीकी जो भी वर्चुअल कैंपस होता है वहाँ पे जाकर आपने इम्तिहान देना होता है और इम्तिहान भी सारा ऑनलाइन होता है। तो ये तरीकाकार है। इस यूनिवर्सिटी का ये खासा है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं और ख़ास तौर पर कंप्यूटर्स के प्रोग्राम में स्टूडेंट को फुली एंगेज किया जाता है। और क्योंकि सारे काम ऑनलाइन होते हैं इसलिए कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम बहुत फिजिबल यहाँ पे होते हैं। तो ये कुछ हकायक थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस सिलसिले में बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म की आरा रखते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने दोनों पहलू रख दी हैं, प्रोज और कॉन्स दोनों आपके सामने रखे हैं। कुछ पॉजिटिव बातें हैं और कुछ नेगेटिव बातें हैं। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट किन हालात में है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं, उसके माली हालात कैसे हैं, उसके नंबर कितने हैं, वो घर से दूर जाकर पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, और क्या उसको पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये हर एक स्टूडेंट की अपने अपने हालात हैं, अपने हालात के मुताबिक आप डिसाइड करें। अगर आप ये जो मैंने ऊपर हालात बताए हैं इनमें से कोई आपको सूट करता है, ये यूनिवर्सिटी आपको सूट करती है, तो आप यहाँ पे दाखिला ज़रूर लें। ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर अगर आप कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर दाखिला लें। ये बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी है। और अगर आपको पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपको इस यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको फिजिकली जाना होता है और वहाँ पे आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ, तो वहाँ से आप डिग्री ले लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।